Hello students, I am Swapnali ma'am. I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss the concepts like antibiotics, then microbes and fuels. After that, microbial pollution control and sewage management from the lesson Introduction to Microbiology. In the previous classes, we have discussed the uses of microbial enzymes in the production of some substances like monosodium glutamate, then in the production of some drinks, toffee, chocolates, and there are some uses of microbes in paper, textile, and plastic industries. So after that, we are going to discuss about this concept. So let us start with the first concept, that is antibiotics. So the concept of antibiotics, this concept is we have studied in a previous year in the ninth standard. So what is the meaning of antibiotics? So antibiotics are the carbon compounds. What is the meaning of antibiotics? Antibiotics are the carbon compounds which are obtained from some useful fungi and bacteria. What is the meaning of antibiotics? Antibiotics are the carbon compounds which are obtained from useful microbes like some fungal species and some bacterial species. So what is the role of antibiotics? We use antibiotics to kill pathogen. What is the role of antibiotics? We use antibiotics to kill pathogen. What is the meaning of pathogen? Pathogens are the microbes which can cause disease. क्योंकि जो भी माइक्रोब्स हमने सम यूजफुल माइक्रोब्स भी हमने स्टडी किए प्रीवियस क्लास में और सम हार्मफुल माइक्रोब्स को भी हमने स्टडी किया है. तो पैथोजन हम किसको कहेंगे? जो माइक्रोब्स डिसीज कॉज कर सकते हैं, उनके वो जो बैक्टीरिया है वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से वो पर्सन अगर सफ़र हो सकता है डिसीजेस से, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैथोजन. सो antibiotics are the carbon compounds which are obtained from the some fungal and bacterial species to kill some harmful microorganisms. So इसके लिए हम क्या करते हैं? antibiotics को यूज़ करते हैं. So there are two types of antibiotics. First one is narrow spectrum antibiotics and the next one is broad spectrum antibiotics. Two types of antibiotics. First one is narrow spectrum and then broad spectrum antibiotics. So narrow spectrum antibiotics means the antibiotics which are used against particular disease. And a broad spectrum antibiotics means they are used against wide range of pathogens. They are called as broad spectrum antibiotics. So these are obtained from bacteria and some fungal species. So here is the example of antibiotics like rifamycin, which is effective against tuberculosis. So this is about the concept of antibiotics. So for today's homework, the first question is define the term antibiotics and write down the two main types of antibiotics with example. तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं एंटीबायोटिक्स के. इसमें रिफामाइसिन जो है वो इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, बट अदर द एग्जाम्पल्स ऑफ अदर एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन जो कि वेल नोन एग्जाम्पल है, देन सिफालोस्पोरिन्स, देन मोनोबैक्टम, आफ्टर दैट बासिट्रासिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, न्यूओमाइसिन, देन स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स एंड वैंकोमाइसिन. ये जो है ये सारे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स है.
सो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो ये जो टर्म है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो हमें ये जो डिफ्रेंसिएशन है बैक्टीरिया का वो स्टेनिंग के प्रोसेस के हेल्प से हमें समझ में आता है. तो ये स्टेनिंग मीन्स हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है तो उनको हम क्या करते हैं, स्टेन्स यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने राइजोबियम बैक्टीरिया या ईस्ट सेल्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग की प्रोसेस करके उन सेल्स को हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं साफ्रानिन, देन मिथिलिन ब्लू, देन आयोडीन. तो ये क्या है, स्टेन्स है, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरियाज है उनके जो भी कंपोनेंट होते हैं या जैसे हम कह सकते हैं सेल वॉल या फिर जो साइटोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियस होता है तो उसको क्या होता है, ये स्टेन यानी कि एक कलर दे सकता है उसको और उसकी वजह से ये हमारे लिए क्या हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए ये इजी बन सकता है. तो ये है एंटीबायोटिक्स. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स. So with the help of microbes, we can obtain some fuels in different forms. So like gaseous fuel, methane can be obtained by microbial anaerobic decomposition of urban agricultural and industrial waste. So methane गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ हम माइक्रोब्स कर सकते हैं. सो इसमें जो भी माइक्रोब्स हम यूज़ करेंगे वो एनारोबिकली डिकम्पोज करते हैं अर्बन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को. सो एनारोबिक डिकम्पोजिशन मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इसकी वजह से मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है. तो इसके लिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये किसको डिकम्पोज करते हैं, द अर्बन एग्रीकल्चरल एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट को. Then next one example is ethanol, which is used as a smokeless fuel, or it is also known as clean fuel. And this type of fuel is obtained during fermentation of molasses by the yeast. और इसमें जो स्पेसीज यूज़ की जाती है वो है सैक्रोमाइसिस. ये यूज़फुल माइक्रोब्स के हेल्प से क्या होता है, इनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं. सो फर्मेंटेशन की प्रोसेस पता है हमें. जिस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं तो उन कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल में. तो इसमें जो स्पेसीज यूज़ करते हैं वो ईस्ट के स्पेसीज है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. तो इसमें इथेनॉल जो है ये स्मोकलेस फ्यूल है जिसको हम कह सकते हैं फ्यूल फॉर फ्यूचर, जो पोल्यूशन कंट्रोल कर सकता है. तो इसकी वजह से इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल वी कैन यूज इथेनॉल. सो प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज possible in the process of fermentation of molasses by using yeast species like Saccharomyces. Then the next one is production of hydrogen gas. It is also considered as fuel of future. So हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कैसे हो सकता है. सो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस लाइक बायो फोटोलिसिस. सो इसमें देखिए बायो मीन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, photo in presence of light, and lysis means breakdown. So biophotolysis means with the help of microbes and in the presence of light we can break this break this water molecule into hydrogen gas एंड ऑक्सीजन. मतलब इसमें जो H2O है तो इसका जो सेपरेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का सेपरेशन होता है फ्रॉम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो ये जो है ये बायोफोटोलिसिस की प्रोसेस से किया जाता है. सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन. इसमें बैक्टीरिया का रोल क्या है, तो बैक्टीरिया
perform the process of photo reduction. So similar to fuels, various industrial chemicals are also produced through microbial processes. So इसमें various alcohols है, then acetone, organic acids, then fatty acids, polysaccharides, and they are useful as raw materials in chemical industry. And some microbes are also used as a also used in the biofuel production. So let us start with the next concept of this lesson. This is that is biofuel. सो इसमें हमने ये जो पहले डिस्कस किया है कि ये गैसेस का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें ही और एक कंसेप्ट है बायोफ्यूल प्रोडक्शन. सो यहाँ पे जो डायग्राम है उसको हम डिस्कस करते हैं, और ये जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है ये हम देखते हैं. सो बायोफ्यूल्स is important among the renewable sources of good energy. अदर भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जो रिन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी के, बट इसमें जो बायोफ्यूल है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है अमंग द वेरियस रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ गुड एनर्जी. सो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स में ये फ्यूल्स अवेलेबल हो सकते हैं. उसके कौन कौन से फॉर्म्स है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले यहाँ पे अगर हम ये जो पिक्चर है इसमें अगर हम देखते हैं तो सोलार एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन से प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे देखिए बायोमास मीन्स यहाँ पे प्लांट्स का जो पिक्चर है, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सोलार एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन सा प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ करते हैं. सो इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में plants use carbon dioxide and water in presence of sunlight, they produce carbohydrates plus oxygen. So ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसमें सोलार एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, यूज करते हैं. आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, और हम कह सकते हैं कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं उसके जो भी ग्रेन्स हैं, उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, या फिर हम प्लांट्स का हार्वेस्टिंग करते हैं. तो इसके बाद हम ग्रेन्स को सेपरेट कर सकते हैं, एज अ होल प्लांट हम उसको यूज़ करते हैं. तो हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, थ्रेशिंग की प्रोसेस करते हैं. थ्रेशिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ. सो इसमें जो भी सेलुलोज का कंटेंट होता है वो हम यूज़ करने वाले हैं ये हम करने वाले हैं फैक्ट्रीज़ में, जिसमें सेलुलोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में. तो इसमें देखिए ये जो प्रोसेस है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, सेलुलोज जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म है, जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कि एक सिंपल शुगर का फॉर्म है. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम फैक्ट्रीज़ में ग्लूकोज के फॉर्म में. सो इसमें आफ्टर कन्वर्जन ये जो भी शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें से फॉर्म हो जाएंगे, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स हम उसका फर्मेंटेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और इससे लिक्विड बायोफ्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. देन दिस बायोफ्यूल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट व्हीकल्स and they produce कार्बन डाइऑक्साइड. सो जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, सो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स. सो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है बायोफ्यूल प्रोडक्शन की. सो इन द डिफरेंट फॉर्म्स दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल, लाइक इन द सॉलिड फॉर्म they are available in the form of coal, then dung and crop residue. These are the solid forms. Then in liquid they are available as vegetable oils, then alcohols, and in gaseous form gobar gas, then coal gas. These are the forms of fuels. So these fuels are easily available and in plenty of quantity. Means इसकी जो quantity है वो क्वांटिटी जो है लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकते हैं. एंड दीज आर द रिलायबल फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर. सो बायोफ्यूल्स एंड सम जो फ्यूल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, देन दिस फ्यूल्स आर
the good sources of energy, as well as these are the examples of fuels which can cause less pollution and they are not harmful to the environment. So जो environment का degradation हम कह सकते हैं, या फिर जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ऐसे फ्यूल्स जो कि माइक्रोब्स के हेल्प से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो जो फ्यूल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं जो कि स्मोकलेस एंड क्लीन फ्यूल्स है. सो इसमें हमने ये एग्जांपल्स देखे माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स में. सो द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडेज होमवर्क इज write a short note on fuels produced by the microbes. उसमें मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल. सो इसमें with the help of microbes we can control the pollution of soil as well as water and air also. So इसमें जो माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल है, तो इसमें कुछ प्रोसेसेस है या फिर कुछ मेथड्स हमें यूज़ करने हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. सो जो सॉलिड वेस्ट एंड सिवेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द industries as well as because of production of some domestic waste also, the pollution getting increased day by day. So जैसे pollution increase हो जाता है तो वैसे ही diseases भी increase हो जाते हैं, as well as जो degradation है environment का, तो ये हमने जो 9th स्टैंडर्ड में जो हमने environmental management lesson हमने स्टडी किया है, तो उसमें हमने देखा है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी इस गार्बेज या जो भी वेस्ट मटेरियल्स डेली जनरेट होते हैं उसकी वजह से ये इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है. तो हमने क्लीन वर्सेस जो गार्बेज जहाँ पे थ्रो किया है, तो ऐसे डर्टी प्लेसेस को हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है और उनको कंपेयर भी किया है. तो ये जो भी पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है या फिर जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी वजह से डिसीजेस भी जनरेट हो रहे हैं, डिसीजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और इसकी वजह से ही इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी हो रहा है. सो ये जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन का वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है. और स्पेशली इसमें क्या होता है कि जो ऐसे सिटीज़ है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, लाइक इंडिया में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो हमें एक ऐसे जो सीरियस रेंज पे हमें ये प्रॉब्लम्स ऐसे देखने के लिए मिलती है पोल्यूशन के. सो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में और इंक्रीज हो सकते हैं अगर राइट टाइम पे हम उसके ऊपर कुछ तो सोल्यूशन अगर फाइंड आउट नहीं करते हैं तो. सो इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल है तो उसमें कुछ माइक्रोब्स है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो वी हैव स्टडीड in previous classes that microbes are also called as environment cleaner. like इसमें examples हम देख सकते हैं decomposers का. सो ऑलरेडी वो अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं, जो कि ये डिकम्पोजर्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम बैक्टीरियाज. सो इसमें जो भी डेड बॉडीज़ होते हैं प्लांट्स, चाहे वो प्लांट स्पेसिस हो या फिर एनिमल स्पेसिस हो, तो उसका जो डिकम्पोजिशन होता है तो वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स होता है. सो इसमें और कुछ हम प्रोसेसेस देखेंगे जिन प्रोसेसेस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो हियर इज़ द एग्जांपल. इसमें हमने मॉडर्न लैंडफिल साइट जो है उसका एग्जांपल लिया है. ये यहाँ पे पिक्चर जो है इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है. सो इसमें क्या किया जाता है, देखो जो डिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो एक्यूमुलेट होता है इन अर्बन एरियाज, सो वो जो डिग्रेडेबल वेस्ट है तो वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए. सो डिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स विच टाइप ऑफ वेस्ट, द डिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स द वेस्ट मटेरियल विच आर डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. उसको हम बायो डिग्रेडेबल वेस्ट भी कह सकते हैं या फिर ड्राई वेस्ट भी कहते हैं.
सॉरी, इसको हम वेट वेस्ट कहते हैं। तो इसमें वो एबिलिटी होती है माइक्रोब्स में डिग्रेडेशन की, तो उसके हेल्प से क्या होता है, ये जो भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सो इसके लिए क्या करना है, कौन सी प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, सो इसमें लार्ज पिट्स को हमें बनाना है। सॉइल डिग करके हमें लार्ज पिट्स को बनाना पड़ता है। ये पिट्स हम कहाँ पे फॉर्म करेंगे, तो ऐसे ओपन स्पेसेस पे, जो ओपन स्पेसेस जो रेसिडेंशियल एरियाज है वहाँ से वो थोड़े से दूर होने चाहिए, अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, एंड दोज पिट्स आर लाइंड विद द प्लास्टिक शीट्स। अब इसमें हमें क्या करना है, प्लास्टिक शीट्स को उसको कवर करना है। क्यों हमें प्लास्टिक शीट को यूज़ करना है उसमें, सो जो प्रोसेस होती है पर्कुलेशन की, या हम उसको कह सकते हैं लिचिंग, तो इसमें जो भी माइक्रोब्स जब इसको डिकम्पोज करते हैं, तो इसमें से अगर टॉक्सिक मटेरियल्स का कुछ प्रोडक्शन होता है, तो वो सॉइल में क्या हो सकता है, लीचिंग की प्रोसेस से ये टॉक्सिक मटेरियल जो है, या हार्मफुल मटेरियल क्या हो सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है, जो कि सॉइल को पोल्यूट कर सकता है। तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है, लीचिंग मीन्स पर्कुलेशन की जो प्रोसेस है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है, प्लास्टिक शीट्स को यूज़ करना है। देन जो कॉम्प्रेस्ड वेस्ट मटेरियल है वो हमें डंप करना है इस पिट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गार्बेज को कलेक्ट किया है, यहाँ पे डाला है गार्बेज को, इसमें ये प्लास्टिक शीट है। तो इसमें इट इज़ उसको हम बाद में कवर करेंगे विद लेयर्स ऑफ सॉइल, देन सॉ डस्ट एंड सम लिफी वेस्ट, एंड इसमें स्पेसिफिक कुछ बायोकेमिकल्स हम ऐड करेंगे। कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बायो रिएक्टर्स भी मिक्स किए जाते हैं इसमें, बट जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल एंड अदर टॉप लेयर्स, दे डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल। आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ दैट पेट, इट इज सील्ड विथ सॉइल स्लरी। जब हम गार्बेज को इसमें ये करने वाले हैं, हम डंप करेंगे, तो इसके बाद जब ये फुल हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से सॉइल की स्लरी ऐड करेंगे, और अपने आप ये जो भी माइक्रोब्स है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, वो उसको डिकम्पोज करते हैं, एंड आफ्टर सम डेज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट इज फॉर्म्ड, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर और कंपोस्ट इन द क्रॉपिंग फील्ड। सो इसमें हम जब कंपोस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, और उसको जो भी लैंडफिलिंग साइट्स हमने फॉर्म किए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। सो इसमें माइक्रोब्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं उसको, या एक्यूमुलेट होते हैं, तो उसको हम इस प्रोसेस से डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। So this is the example of microbial pollution control, means with the help of land filling sites we can control this pollution. The next concept is sewage management. So पहले हम देखते हैं कि what is the meaning of sewage. So जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, तो उसको हम कहते हैं सिवेज। सो इन विलेजेस जो डोमेस्टिक सिवेज होता है उसको हम डिस्पोज करते हैं अदर इन नियर सॉइल और इन बायोगैस प्लांट। तो ईच एंड एवरी जो पर्सन है विलेजेस में, तो वो बायोगैस प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसकी वजह से जो भी डोमेस्टिक सिवेज का प्रोडक्शन होता है, तो उसको डिस्पोज किया जाता है नियर बाय सॉइल में। सो अवेवर इन सिटी जो भी सिवेज है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट में उसको लिया जाता है, और वहाँ पे कुछ माइक्रोबियल प्रोसेसेस किए जाते हैं, मीन्स उस सिवेज को ट्रीटमेंट दी जाती है, और आफ्टर दैट सिवेज ट्रीटमेंट ये जो भी सिवेज है उसको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। So microbes which can decompose any compound as well as destroy the pathogens of cholera, then typhoid are mixed with the sewage. इसकी वजह से देखो, जो सिवेज होता है तो ये वेस्ट वाटर है, इसकी वजह से जो भी वाटर बॉर्न डिसीजेस है, एयरबॉर्न डिसीजेस है, वो प्रोड्यूस हो सकते हैं।
तो इसमें लाइक कॉलरा जो है या टाइफॉइड है, ऐसे डिसीजेस स्प्रेड होने के ये चांसेस है विद हेल्प, मतलब जो भी सिवेज है उसको अगर हम ऐसे ही डिस्पोज करते हैं सॉइल में, तो इसकी वजह से ये जो डिसीजेस है वो प्रोड्यूस होने के चांसेस है, इसके पैथोजेंस। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ माइक्रोब्स यूज़ करेंगे जो माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सम कंपाउंड्स को एज वेल एज सम पैथोजेंस like cholera and typhoid. So they release methane and carbon dioxide by decomposition of the by the decomposition of the carbon compounds present in sewage. So जो प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं उस सिवेज में, तो उसको ये ब्रेक करके उसका डिकम्पोजिशन करके हमें क्या मिलता है, इसका जो बाय प्रोडक्ट्स है लाइक मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. सो देर आर सम बैक्टीरिया लाइक फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया विच कैन डिकम्पोज द xenobiotic chemicals present in sewage. Phenol oxidizing bacteria, they decompose the xenobiotic chemicals present in the sewage. So this is all about the microbial pollution control and some fuels which are produced with the help of microbes. So इसमें जो प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की, तो उस प्रोसेस में जो स्लज होता है जो सेटल हो जाता है एट द बॉटम, सो वो जो स्लज है वो अगेन हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स. And the water released after microbial treatment is environmentally safe. ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो केमिकल मिक्स या जो जिसमें टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सिवेज को अगर हम रिलीज़ कर देते हैं नेचुरल रिजर्वायर्स में, जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, उसमें, तो ये हार्मफुल हो सकता है उस एक्वाटिक लाइफ के लिए जो उस वाटर में प्रेजेंट है, एज वेल एज जो पर्कुलेशन के प्रोसेस होते हैं, वाटर जो है वो पर्कुलेट होता है, इसकी वजह से जो नियर बाई सॉइल है तो उसके ऊपर भी इसका क्या होता है, इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है. जैसे कि ये वाटर को तो पोल्यूट करता ही है, बट इसके साथ साथ ये सॉइल को भी पोल्यूट करता है. तो जो वाटर हम रिलीज़ करते हैं आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, मीन्स जो हमने अभी प्रोसेस देखी सीवेज मैनेजमेंट में, जो हम प्रोसेस करते हैं सीवेज को ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, तो ये जो भी वाटर हम रिलीज़ करते हैं आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, so this water is environmentally safe water. And microbes are used for bioremediation of environment polluted due to sewage. So ये जो प्रोसेस है देखो इसको और एक नाम दिया जा सकता है बायोरेमेडिएशन. सो बायोरेमेडिएशन का प्रोसेस का मीनिंग क्या है? सो बायो मीन्स यहाँ पे माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से रेमेडिएशन मीन्स सेपरेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स. सो इसमें फाइटो रेमेडिएशन की भी प्रोसेस आती है जिसमें हम प्लांट स्पेसीज को यूज़ करते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स के सेपरेशन के लिए. बट इसमें जो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब जो हम इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, सो इस प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं. सो इसमें सम बैक्टीरियल स्पेसीज हम यूज़ करते हैं, और उन बैक्टीरियल स्पेसीज की हेल्प से जो भी पोल्यूटेड जो भी मटेरियल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्लीन करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक्स. सो एंटीबायोटिक्स आर द कार्बन कंपाउंड्स which are obtained from useful microbes. After that, there are two types of antibiotics, narrow spectrum and broad spectrum. The next concept we have studied is microbes and fuels, जिसमें different types of fuels जो है वो obtain कर सकते हैं हम with the help of microbes. Then we studied the concept of biofuel. After that, microbial pollution control. So for today's homework, the third question is prepare a notes on microbial pollution control. और इसमें आपको लैंड फिलिंग साइट्स एंड सिवेज मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट
प्रिपेयर करनी है। सो ये जो हमने कंसेप्ट स्टडी की है, तो इसमें माइक्रोब्स का जो यूज़ है फ्यूल के प्रोडक्शन में एज वेल एज पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ये हमने स्टडी किया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लीन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। इसमें जो भी माइक्रोब्स हम यूज़ करते हैं फार्मिंग में, जैसे कि जो भी हम एज अ फर्टिलाइजर्स, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो instead of using chemical fertilizers we can use some other sources, and we can use microbes as a inoculant, then as a bioinsecticides. So ये जो concepts है वो हम next class में discuss करने वाले हैं। So इसमें जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट राइट डाउन करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंटीबायोटिक्स का है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो माइक्रोब्स एंड फ्यूल का है। सो ये जो कंसेप्ट है हमने इस क्लास में स्टडी की है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लीन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोब्स एंड फार्मिंग।